میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں. سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو, میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا. میں تمہیں بتاؤں, ایسی اس کے اندر ترتیب ہے, اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے, ممکن ہی نہیں ہو سکے گا, ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال ڈال کے چیک کیا ہے بار بار. اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی. میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں, وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے, جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں, زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں, انبیاء کے تذکرے بھی ہیں, معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے. قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے, ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے, اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ ہے. یہ سب ہے نا. یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی, کچھ حلال بیان کیے, کچھ حرام بیان کیے. حرام چیزیں کیا کیا ہیں, حلال چیزیں کیا کیا ہیں, تمہیں کرنا کیا ہے, نہیں کرنا کیا ہے, یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا. لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا, وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے, فٹ بیٹھتا ہے. کیلکولیشن اٹھاؤ اور میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے, پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے. سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے تو سنو. سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے, زمین ہے, خشکی ہے. یہی ہے تقریباً تحقیق سب کی یہی. قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں, البر. البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. البر لفظ, یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا. البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے. یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے, لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں. آج یاد رکھنا, آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں, کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے, آ جائے کوئی بھی. بر کا ذکر 13 مرتبہ, بحر کا ذکر 32 مرتبہ, دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے. جلدی جلدی حساب کرنا, ٹائم بہت کم ہے, باہر روکنے والے بھی ہیں. تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں. 100% اگر کائنات ہے, 100% اگر پوری دنیا ہے تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے. 45 رکھو اور اس کے بعد 32. 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا. اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے, اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70. اور 13 ہے نا, یہ بر کا ذکر, سوکھائی کا ذکر 13 ہے. 13 کو بھی 100 into 45 into یہ پرسنٹیج نکالو گے, 13 ڈالو, وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے. یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا, بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا. یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے, اچانک نہیں آئی چیز. اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے. اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا, دنیا آخرت. اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے دنیا کا اپوزٹ کیا ہے, آخرت ہے نا. فرشتہ ہے, اس کا اپوزٹ کیا ہے, شیطان. فرشتہ سب سے نیک, شیطان سب سے برا. اور موت, اس کا اپوزٹ کیا ہے, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے, موت کا اپوزٹ حیات ہے. نفع فائدہ, اس کا اپوزٹ بہت اچھے. کفر, اس کا اپوزٹ ایمان. اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہیں, 2 ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتائے. دنیا ایک لفظ ہے, اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. دنیا کا کتنی مرتبہ, 100. پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے آخرت, یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے. اور اس کے بعد آگے جاؤ گے, شیطان. شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے, شیطان کا لفظ. اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا. نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا. اس کے بدلے میں جو فساد ہے, شر ہے, اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے.
कुरान यूं ही नहीं है, मैथ्स का एक ऐसा रब्त है कि तोड़ नहीं सकोगे। मौत का जिक्र अल्लाह ताला ने 145 मरतबा किया, फिर पूरे 30 पारे खोल के देखो, हयात का लफ्ज भी 145 ही बार है, मामूली नहीं है। इस तरह से कुफ्र का लफ्ज, उसका अपोजिट क्या है? ईमान। कुफ्र का लफ्ज आप पूरे कुरान में देखोगे 25 मरतबा आया, और ईमान जगह जगह से ढूंढ के देखोगे तो ईमान भी 25 ही बार आया है। इतना ही नहीं, आपको अरबी के 2 लफ्ज में आपको बताऊं, एक शहर है, एक यौम है। शहर है, यौम है। तर्जुमा याद रखना, शहर किसको कहते हैं? महीने को। किसको? शहर किसको कहते हैं? महीने को। यौम किसे कहते हैं? दिन को। तकरीबन याद रहना चाहिए, शहर महीने को और यौम दिन को। अब आओ कुरान में देखो ये कितनी कितनी बार यूज हुए। लफ्ज शहर पूरे कुरान में 12 ही बार यूज हुआ। कितनी बार? इसका मतलब क्या है? महीने कितने होते हैं? कभी 13 सुना किसी भी, कभी 11 सुना। लफ्ज शहर पूरे कुरान में अल्लाह ने जहां जहां भी इस्तेमाल फरमाया कितनी बार आया है? 12 बार। और लफ्ज यौम पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक 360 मरतबा आया है। एक भी कम या एक भी ज्यादा नहीं आया। यौम, लफ्ज यौम, इसलिए कि इस्लामी मंथ जो होते हैं मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, इस चांद के एतबार से चलते हैं। अंग्रेजी महीने 365 के होते हैं, इस्लामी महीने 360 के होते हैं। और अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में यौम भी 360 मरतबा। अब एक और बता दूं तुम्हें, खेर करके 19 का पहाड़ा अगर आता हो तो बहुत अच्छा होगा, भूल गए होंगे तो फिर याद कर लें। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आयत कौन सी नाजिल की, मैं शुरू में बता चुका। कौन सी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मैं बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, हमारे जमात के अराकीन, मुअज़्ज़ज़ अराकीन, मुल्ला बड़ा वाले बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, थोड़ी देर आज बाहर संभाल लें, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। अल्लाह इनको बहुत जज़ा अता फरमाए, बहुत जज़ा अता फरमाए। कुरान को छोड़कर हटने का दिल भी नहीं करता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने जो आयत सबसे पहले नाजिल फरमाई वो क्या है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। और सबसे आखिर में क्या नाजिल फरमाई? इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह। ये दोनों सूरतें ज़हन में हैं। अब एक देखो, सूरह मुदस्सिर में एक आयत आई है, अलैहा 19। अल्लाह ने एक लफ्ज ऐसा फरमाया, उसका तर्जुमा अक्सर आज तक लोगों ने अलग अलग किया, लेकिन किसी को हकीकत उसकी मालूम नहीं। अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। किस पर 19 हैं? सूरह मुदस्सिर में आप जाएंगे 29वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया उस पर 19 हैं। कुछ लोगों ने तफसीर में कहा 19 फरिश्ते हैं जो जहन्नम को संभालें, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो अर्श को उठाएं, कुछ ने कहा 19 फरिश्ते हैं जो आसमान से उतरते हैं। अलग अलग तफसीर है। 19 क्या है ये मालूम नहीं। तो एक मुहक्किक ने 19 का वर्ड कुरान में ढूंढना शुरू किया, क्या क्या ढूंढ करके निकाला। अल्लाह अल्लाह, उनको भी अल्लाह जज़ा अता करे। 19 का लफ्ज यूं ही नहीं आया कुरान में, अल्लाह ताला ने इसको फरमाया ये मुहाफिजत, हिफाजत करने वाली चीज के लिए 19 का लफ्ज आया कि 19 हिफाजत करने वाले हैं। क्या है मालूम नहीं। अब मैं आपको बताऊं, पूरे कुरान की सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कहा गया है ये हर सूरे की चाबी है और चाबी से ही हिफाजत होती है। अब आओ बिस्मिल्लाह को अगर तोड़ करके इसके हुरूफ गिनो, बा सीन मीम अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम रा हा मीम नून अलिफ लाम रा हा या मीम, कुल जोड़ोगे तो ये 19 ही निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हर्फ आए हैं। कितने आए? 19 हर्फ आए हैं। अब इतना ही नहीं, ये चाबी है हर सूरे की। अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया था, उस पर 19 हैं हिफाजत करने वाले। क्या है? अभी ढूंढते जाओ, अभी ढूंढते जाओ, 19 और मिलेगा तुम्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके पूरे कुल हुरूफ कितने हैं? 19 हैं। अब इतना ही नहीं, हर सूरे के शुरू में ये चाबी रखी गई है हिफाजत की, 19 इसके अंदर हैं। अब इसमें से एक एक हर्फ को मैं अलग, एक एक लफ्ज को अलग करता हूं। इस्म हो गया, अल्लाह हो गया, रहमान हो गया, रहीम हो गया। अब मैंने इसको भी तलाश किया कुरान पाक में, लफ्ज इस्म कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज अल्लाह कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज रहमान कुरान में कितनी बार आया है, लफ्ज रहीम कुरान में कितनी बार आया है। तो जानते हैं बिस्मिल्लाह के एक एक हर्फ को आपने अलग किया था तो कितने हुए थे? बा सीन मीम, ये सब कितने हुए थे? 19 हुए थे। अब लफ्ज इस्म को पूरे कुरान में ढूंढोगे, इस्म पूरे कुरान में सिर्फ 19 बार आया है। पूरे कुरान में कितनी बार आया है? मैथ्स वाले उठाओ कैलकुलेटर, आगे चलो। लफ्ज रहमान कुरान में 57 मरतबा आया। कितने? 57। मैं पारा पढ़ता हूं, 19 21 19 19 2 38 19 3 57। ये 57 19 को 3 बार जरब दोगे
157 होंगे। 19 का आदद लफ्ज रहमान में भी मौजूद है। लफ्ज रहीम पूरे कुरान में 114 मरतबा है। कितने? 114 मरतबा। 19 का पारा फिर पढ़ो, इसको डिवाइड करके देखना 114 से। 19 की 19, 19 2 38, 19 3 57, 19 चौक 76 या 78, 78 जो भी, 19 और 5 95, 19 छिके जो 6 हो 19, 6 114 होता है 114। अगर 19 को 6 बार ज़रब दोगे 114 निकलेगा। 19 के हर लफ्ज से कहीं नहीं जाना है तुम्हें। लफ्ज रहमान भी 114 मरतबा आया, लफ्ज रहीम और लफ्ज अल्लाह 2699 मरतबा आया। और इसको भी तुम अगर डिवाइड करोगे 142 को अगर डिवाइड कर दिए 19 से, तो 19 142 मरतबा अगर पढ़ोगे तो यही अदद तुम्हें निकल के आएगी 2699 मरतबा। इतना ही नहीं, 19 का अदद यहीं खत्म नहीं होता। 19 का अदद यहां खत्म नहीं होता। पूरे कुरान की कितनी सूरतें हैं? 114। कितनी हैं? और 19 से डिवाइड करके देखो इसको। 19 पंजे 95, 19 छिके 114। ये सूरतें भी 19 पर हैं। ये ऐसी चाबी है। अब आओ, सबसे पहले कौन सी सूरह? सूरह इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। ठीक है ना? कितनी आयतें नाज़िल हुई थी? 5 आयतें। इसको मैं बाद में बताता हूं। उससे पहले एक और, लैलतुल कद्र को देखो अल्लाह ने कैसे बयान किया। हम सब लैलतुल कद्र, शब कद्र कब मनाते हैं? 27 रमजान को ना। तकरीबन दुनिया में अक्सर लोग 27 रमजान को क्या मनाते हैं? लैलतुल कद्र। अरबी में शब कद्र को क्या कहते हैं? लैलतुल कद्र। ये सूरह आई है 30वें पारे में, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। उस एक सूरह में लैलतुल कद्र का वर्ड 3 बार यूज हुआ है। कितनी बार? 3 बार। ज़हन में है ना? लैलतुल कद्र, शब कद्र 3 बार यूज हुआ। लैलतुल कद्र में कितने हर्फ हैं? लाम, या, लाम, ता, अलिफ, लाम, काफ, दाल, रा। कितने हुए? 9। एक लैलतुल कद्र में कितने लफ्ज आए? 9। और ये लैलतुल कद्र कितनी बार यूज हुआ? 3 बार। 9 को 3 से ज़रब दो, 9 के 9, 9 2 18, 9 3 27। लैलतुल कद्र कब है? कुरान यूं ही नहीं आया है, पूरा मैथ्स लेकर के आया है। कुरान पढ़ने वाला मैं समझता हूं मैथमेटिक्स में फेल हो ही नहीं सकता। मुझ जैसे जाहिल को देखो जो बैठा हूं और मैथ्स तुम्हें बता रहा हूं। ये कुरान की बरकत है, कुरान की बरकत है। मैंने किसी यूनिवर्सिटी में मैथ्स नहीं पढ़ा, सिर्फ कुरान से पढ़ा है। अब आओ मैं तुम्हें बताता हूं कुरान शुरू जहां नाजिल हुआ इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, और जहां खत्म हुआ इदा जाआ नसरुल्लाह। और अल्लाह ने ये 19 की चाबी दोनों में लगा रखी है। कैसे? आओ, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक को मैं पढ़ता हूं मालम यालम तक। कहां तक? मालम यालम। अपनी उंगलियों से गिनते रहना। मैं एक एक हर्फ गिनता जा रहा हूं। इकरा बिस्मि रब्बिका अल्लज़ी खलक, खलका अल इंसाना मिन अलक, इकरा व रब्बुका अल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमा अल इंसाना मा लम यअलम। टोटल कितने हुए? इकरा से लेकर के मालम यालम तक एक एक वर्ड मैंने गिना। कितने आए? 19 आए। ये सबसे पहले नाजिल होने वाली आयतें हैं। चलो इदा जा में चलते हैं। आखिरी जो सबसे आखिर में आई, इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। 19 लफ्ज इसमें भी आते। कितने आते हैं? फिर से जोड़ना इदा को। ये एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज है अरबी में। इजा एक अलग चीज है, जा अलग है, नस्र अलग है, अल्लाह अलग है, वल फतह अलग है, व रअयत अलग है, अन्नास अलग है, यदखुलून अलग है, फी अलग है, दीन अलग है, अल्लाह अलग है, अफवाजा अलग है। उसके बाद फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फसब्बिह अलग है, बिहम्दि अलग है, रब्बिका अलग है, वस्तगफिर अलग है, इन्नहु अलग है, काना अलग है, तव्वाबा अलग है। पूरे टोटल कितने हुए?